Hello everyone. This is the second video of internal reconstruction. In previous video, we have already discussed the concept of internal reconstruction. Now, in this video, we will discuss the methods of internal reconstruction and accounting treatment that is required under internal reconstruction. So first, see the meaning of internal reconstruction. Now, what do you mean by internal reconstruction? Internal reconstruction means to reorganize the company, to rearrange the financial structure so that the company can become the profit making company. तो internal reconstruction क्या है कि that will help the company to rearrange their financial structure. Now, let's discuss the methods of internal reconstruction. There are different methods of internal reconstruction. Here we will discuss the different methods of internal reconstruction under two heads. That is, first, alteration of capital, and second, reduction of capital. Now, first we will discuss alteration of capital. See, alteration of capital means changing the share capital. Alteration का मतलब होता है changing. Alteration of capital means changing the share capital. Now, how you can change the share capital? आप कैसे share capital को change कर सकते हैं? So for that there are different ways by which we can alter the share capital. First, issue of new shares, subdivision of shares, by conversion of shares into stock, or by converting the stock into shares, by cancelled the unissued share, and by consolidation of shares. So these are the ways by which we can alter the share capital. Now let's discuss each and every method in detail. Now first is issue of new shares. See, when a company needs additional capital and all the existing shares are being fully issued, then it may increase its authorized capital creating new shares. The share capital may be increased by issue of such new shares. जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और ऑलरेडी उसके जो ऑथराइज कैपिटल होती है वो फुली मार्केट में वो इशूड कर चुका होता है, देन द कंपनी कैन इंक्रीज द एडिशनल कैपिटल बाय issuing the new shares. For this, it is necessary to pass a special resolution in the general meeting of the company. And the only restriction in this regard is that the offer for the new shares must be made first to the existing equity shareholder. Restriction क्या है कि जब भी कंपनी कोई नए शेयर इशूड करती है तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है. If any old shareholder does not purchase, then the director of the company can issue such share to anyone else. और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उन शेयर्स को परचेज नहीं करते तो जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के वो उन नए शेयर्स को किसी और पर्सन को इश्यू कर सकती है. राइट नाउ नेक्स्ट, दैट इज कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक. सी, the conversion of shares into stock and vice versa means shares into stock and stock into shares. The only condition is that कि only fully paid up shares may be converted into stock. केवल हम fully paid up shares को ही stock में convert कर सकते हैं. तो only fully paid up shares is converted into stock, and similarly stock can be reconverted into shares. When the company convert the shares into stock, the following entry will be made. तो आपको एंट्री पास करनी होती है और कौन सी एंट्री पास की जाएगी उसके लिए हम एक एग्जांपल से उसको समझते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ 2000 फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹100 ईच आर कन्वर्टेड इनटू स्टॉक. अगर कंपनी अपने 2000 फुली पेड अप शेयर्स जो जिसकी फेस वैल्यू 100 है उसको स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहती है, द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड. उसके लिए क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो कन्वर्ट हो रही है स्टॉक में, एंड टू कैपिटल स्टॉक, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2000 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 2 लाख. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल स्टॉक अकाउंट. ऑन कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर्स तो उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी. द एंट्री विल बी कैपिटल स्टॉक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. स्टॉक की अपनी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती. Stock has no fixed value and can be transferred to anyone without
sending transfer form to the company. Next method आता है alteration का, that is subdivision of shares. Now, subdivision of shares. What do we mean by subdivision? Subdivision means splitting the shares into small denomination. A company can also subdivide its shares into shares of a smaller denomination. कंपनी क्या करती है कि वो अपने एक सिंगल शेयर्स को स्प्लिट कर देती है. फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी के पास शेयर्स है, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो कंपनी क्या करती है कि जो सिंगल शेयर होता है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, उसको सब डिवाइड कर देती है और उसको कन्वर्ट कर देती है 10 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. इसमें ओवरऑल प्रोसीजर में क्या होता है कि जो टोटल शेयर कैपिटल की वैल्यू होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते. सो सब डिवीज़न का मतलब क्या हुआ कि सब डिवीज़न मीन्स स्प्लिटिंग द शेयर्स इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन. A company can subdivide its shares into shares of a small denomination, although paid up value of share capital will not change, but the number of shares will increase. पेड अप वैल्यू चेंज नहीं होती लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स चेंजेस हो जाते हैं. पहले नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं एंड आफ्टर स्प्लिटिंग द नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज. नाउ व्हाट विल द कंपनी डू आफ्टर स्प्लिटिंग द शेयर्स? शेयर्स को स्प्लिट करने के बाद कंपनी एक एंट्री पास करती है. तो जो भी ओल्ड कैपिटल होती है, जो भी ओल्ड शेयर्स होते हैं, उसको कैंसिल करती है. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. इफ़ अ कंपनी वांट टू हैव 1000 शेयर्स ऑफ ₹500 ईच, अगर कंपनी के पास 1000 शेयर्स है और उसकी फेस वैल्यू 500 है एंड अ कंपनी वांट टू डिवाइड इट इनटू 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच डिनोमिनेशन, तो कंपनी एक एंट्री पास करती है. इन दिस एग्जांपल 1000 शेयर्स है जिसकी फेस वैल्यू 500 रुपीज़ है और कंपनी ने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करके उसको स्मॉल डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ 100 रुपीज़ ईच, और नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए फ्रॉम 1000 टू 5000. ओवरऑल प्रोसीजर में जो आपकी पेड अप वैल्यू है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए. सी अर्लियर 1000 शेयर्स थे 500 के, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 1000 मल्टीप्लाई 500, दैट इज इक्वल्स टू 5 लाख. आफ्टर डिवाइडिंग द शेयर्स इनटू 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, आपकी कैपिटल कितनी है 5000 मल्टीप्लाई 100, दैट इज इक्वल्स टू 5 लाख. तो अर्लियर आपकी कैपिटल 5 लाख थी और आफ्टर डिवाइडिंग कैपिटल 5 लाख है. इट मीन्स कोई भी चेंज नहीं आया. नाउ एंट्री करते समय आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो भी ओल्ड वैल्यू, जो भी ओल्ड फेस वैल्यू की शेयर्स कैपिटल है उसको हम कैंसिल करेंगे और डेबिट कर देंगे. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑफ ₹500 ईच टू शेयर कैपिटल ₹100 ईच. तो आप ओल्ड शेयर कैपिटल को कैंसिल करके डेबिट कर देंगे और न्यू शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे. राइट. तो ओवरऑल सब डिवीज़न में क्या होता है कि सब डिवीज़न में कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट करती है इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन एंड इन दिस द नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीजेज एंड द पेड अप वैल्यू विल नॉट चेंज. ओके. नाउ नेक्स्ट ऑफ शेयर्स. कंसोलिडेशन ऑफ शेयर इज जस्ट अपोजिट टू सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स. जो कंसोलिडेशन है वो सब डिवीज़न का अपोजिट है. सब डिवीज़न में हम शेयर्स को स्प्लिट करते थे स्मॉल डिनोमिनेशन में, और कंसोलिडेशन में हम क्या करते हैं कि जो स्मॉल डिनोमिनेशन के शेयर्स होते हैं उसको हम कंबाइंड कर देते हैं. अ कंपनी कंबाइंड और वी कैन से कंसोलिडेटेड शेयर्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन इनटू शेयर्स ऑफ हायर डिनोमिनेशन. दिस डज नॉट रिजल्ट इनटू चेंज ऑफ पेड अप कैपिटल. जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तो इस प्रोसीजर में भी पेड अप कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आता, बट द नंबर ऑफ शेयर्स इज रिड्यूस. लेकिन इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं. सी द एग्जाम्पल. See, a company has a right to consolidate shares having small face value into having big face value of, that is, shares of ₹10 each may be consolidated into shares of ₹100 each. जो आपके पास ऑलरेडी 10 रुपीज़ के शेयर्स थे उसको क्या करती है, वो कंसोलिडेट करती है और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है 100 रुपीज़ ईच में. तो उस कंडीशन में हम एंट्री क्या पास करेंगे, इफ़ कंपनी कंसोलिडेट 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इंटू 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. कंपनी के पास 10,000 शेयर्स थे जिसकी फेस वैल्यू 10 थी
अब उसने क्या किया, उसको कंसोलिडेट किया और उसको 10,000 को कन्वर्ट कर दिया 1,000 शेयर्स में और उसकी फेस वैल्यू इंक्रीज कर दी अप टू ₹100 ईच। तो इसमें क्या था, आपके कंपनी के पास 10,000 इंटू 10 कैपिटल कितनी थी, 1 लाख की। और आफ्टर कंसोलिडेशन कैपिटल कितनी है, 1,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, अगेन 1 लाख। तो इस पूरे प्रोसीजर में कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर्स थे पहले 10,000 थे, अब रिड्यूस हो गए 1,000 शेयर्स हो गए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 ईच, जो पहले शेयर्स थे 10 के उसको हम कैंसिल कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एंड टू शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, जो नए शेयर्स हैं 100 ईच के, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स। कैंसिलेशन में हम क्या करते हैं, इफ द कंपनी हैज़ नॉट इश्यूड अ पार्ट ऑफ इट्स ऑथराइज कैपिटल एंड इट डज नॉट वांट टू इश्यू इट इन फ्यूचर, अगर कंपनी ने अपने ऑथराइज कैपिटल का कुछ पार्ट इशूड नहीं किया है और वो फ्यूचर में उसको इशूड नहीं करना चाहती, देन इट मे कैंसिल इट। तो कंपनी उन शेयर्स को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है और उस कैंसिलेशन के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती। क्लियर? तो अ कंपनी हैज़ अ राइट टू कैंसिल ऑल दो शेयर्स विच हैव नॉट बीन इश्यूड ऑन अ पर्टिकुलर डेट और हुज इशू हैज़ नॉट बीन promised to any person. If a company has not issued a part of its authorized capital, then it does not and it does not want to issue in future, then it may cancel it and no entry is made for such cancellation. Clear? Now next here, that is reduction of capital. Now we will discuss how we will reduce the capital. If the article of the company permits, a company can reduce its capital by passing a special resolution in general meeting and getting permission from the court. अगर आर्टिकल, कंपनी के जो आर्टिकल है वो परमिट करता है, तो कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है, लेकिन उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में। रिडक्शन कैसे किया जाता है? फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ अनपेड अप कैपिटल। If the company has called only a part of the face value on its shares and do not want to call the remaining amount in future, अगर कंपनी ने, फॉर एग्जांपल, कंपनी ने एक जो शेयर्स है उसकी फेस वैल्यू ₹10 है और कंपनी ने अभी तक उसमें से ₹8 कॉल्ड अप किया हुआ है और ₹2 अभी अनकॉल्ड मनी है और कंपनी उसको फ्यूचर में कॉल नहीं करना चाहती, देन द कंपनी कैन कैंसिल दैट बैलेंस अमाउंट. So the shareholder will be exempted from paying the uncalled money on shares. And for this, no entry will be passed. इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी. सेकेंड है रिफंड ऑफ कैपिटल. व्हाट डू मीन बाय रिफंड ऑफ कैपिटल? इसमें क्या होता है? सी, इफ द कंपनी हैज सरप्लस कैश लाइंग आइडल इन द कंपनी बिकॉज ऑफ नो प्रॉफिटेबल यूज, कंपनी के पास कैश है और उसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, या डायरेक्टर्स जो कंपनी के होते हैं वो शेयर होल्डर्स की कैपिटल को रिफंड कर देते हैं. उससे भी हम कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं. थर्ड मेथड है रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल. सी, इन दिस एक अकाउंट ओपन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. और इसमें क्या किया जाता है कि जो भी कंपनी के पास लॉसेज हैं और जिसके कारण से कंपनी की बैलेंस शीट में अननेसेसरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस शो किया हुआ है और एसेट्स को हायर वैल्यू पे शो किया गया है, तो उसको कंपनी क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है उसको राइट ऑफ करती है, जिससे वो अपनी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर सके. तो इस तरीके से कंपनी जो है रिडक्शन करती है अपनी कैपिटल में. रिडक्शन ऑफ कैपिटल. नाउ next we will see the accounting treatment of internal reconstruction. Now accounting treatment of internal reconstruction में हम क्या डिस्कस करेंगे कि इसमें हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्स्ट यू हैव टू पास द जनरल एंट्रीज फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. क्लियर? नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द जनरल एंट्रीज एंड फॉर दैट you have to open one account that is called the capital reduction account. Now, capital reduction account is a temporary account opened in order to carry out the internal reconstruction. Internal reconstruction को वर्कआउट करने के लिए आपको एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट.
When the scheme is carried out, the account is closed. जैसे ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर एंड होता है, हम कैपिटल रिडक्शन को क्लोज कर देते हैं. The capital reduction account represents the sacrifice made by the shareholder, debenture holders, creditors. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं, जो वो सेक्रीफाइस करते हैं, उसको हम किस में शो करते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. और जो भी वो सेक्रीफाइस करते हैं अमाउंट शेयर होल्डर्स, उसको हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं. द सेक्रीफाइस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट. द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू द अकाउंट. उसके बाद अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू को एप्रिशिएट किया गया है, देन दैट अमाउंट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. जो भी अमाउंट आपके पास क्रेडिट हुए हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, उसका यूज़ हम करते हैं in order to write off the accumulated losses. This amount available is used to write off accumulated losses, intangible assets, overvaluation of assets. If there is any balance in this account, अगर राइट ऑफ करने के बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कोई भी बैलेंस बचता है, देन इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. और उसको हम क्लोज कर देते हैं और उस बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. क्लियर? नाउ लेट्स सी द entries. Now, here are the general entries of internal reconstruction. Now, the first general entry, that when the face value of the share is changed or the rate of dividend on preference shares is changed. First entry is that when the face value of the shares is reduced or changed. See, what will be the general entry when the face value of the share is changed? When the face value of any share is reduced, then it is a loss for the shareholder and gain for the company. And you have to remove the old share capital. Here, your liability is decreasing. क्योंकि स्टार्टिंग में अगर 10 रुपीज़ का एक शेयर है और उसकी अब हमने फेस वैल्यू को रिड्यूस करके 8 कर दिया, इट मीन्स 2 रुपीज़ शेयर होल्डर सेक्रीफाइस कर रहा है और कंपनी को 2 रुपीज़ का गेन हो रहा है. तो इससे कंपनी की लायबिलिटी क्या हो गई? 2 रुपीज़ से डिक्रीज़ हो गई. और जब लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो उसको हम क्या करते हैं? व्हेन लायबिलिटी डिक्रीज्ड यू हैव टू डेबिट इट. तो ओल्ड शेयर कैपिटल को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू न्यू शेयर कैपिटल. न्यू शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे. वाई? बिकॉज हियर न्यू लायबिलिटी क्रिएटेड, यहाँ पे नई लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो इट विल बी क्रेडिटेड. और जो गेन हुआ है कंपनी को, द डिफरेंस बिटवीन द old face value and the new face value, that is a gain for to the company, and that will credited in the capital reduction account. उसको हम capital reduction account में credit कर देंगे. तो आपकी तो ओवरऑल एंट्री आप क्या पास करेंगे? ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. राइट? ओके. Now the next entry, when the face value of the shares or the rate of dividend on preference share is not changed, but only paid up value is changed. If only paid up value is changed, you have to pass the entry only for the reduction. The entry will be share capital account debit to capital reduction account. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टार्टिंग में किसी भी शेयर्स की पेड अप वैल्यू 1 लाख है एंड नाउ इट विल डिक्रीज बाय 20,000, इट मीन्स अब आपकी नई पेड अप कैपिटल 80,000 हो गई, 20,000 से आपने डिक्रीज कर दी. तो जो आपने डिक्रीज की है 20,000, उससे हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. राइट? नाउ नेक्स्ट एंट्री. Now the next entry, if the creditors and debenture holders reduce their claim. I've already told you, if any creditors or debenture holders sacrifice their claim, अगर sacrifice करते हैं, then the capital reduction account will be credited with that amount. तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री पास करेंगे कि creditors account debit, debenture account debit to capital reduction account. नेक्स्ट है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज एप्रिशिएटेड. अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एप्रिशिएट की गई है, इट मीन्स इट इज़ अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी, एंड इन दैट कंडीशन ऑल्सो द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. तो जितने से एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे. एंड द एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. राइट?
Next entry, on payment of any contingent liability. If there is any contingent liability, it means it will increase your liability. It is a loss for you. So in that condition, the capital reduction account will be debited. तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंटीजेंट लायबिलिटी, क्योंकि दिस विल डिक्रीज द कैपिटल रिडक्शन because it is a loss for the company, right? Next entry and the last. See the last entry and the important entry. When amount of capital reduction is utilized for writing off fictitious assets, past losses and excess value of other assets. See, जो भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आपने अमाउंट ट्रांसफर किया है, that will be utilized for writing off all the past losses and fictitious assets. For that you have to pass a single entry. See, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, आप कैपिटल रिडक्शन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू गुडविल, टू पेटेंट, टू अदर एसेट्स. तो आपको राइट ऑफ करना है. यू हैव टू राइट ऑफ profit and loss account, discount on issue of debenture, preliminary expenses, whether it is mentioned in question or not. Other assets, if it is written that you have to depreciate your assets, आपको assets की value को decrease करना है, then only you will write off. After writing off all the losses, if there is any balance left in the capital reduction account, then that balance you have to transfer to capital reserve account. अगर capital reduction account में जितने भी losses है उसको write off करने के बाद कोई balance रहता है, then that balance you have to transfer to capital reserve account. Clear? See, these are the entries that you have to pass in internal reconstruction. In the next video, we will solve the problem and you will understand these entries more clearly. Clear? Thank you.